Hello viewers, welcome back to my channel. Now in this video we talk about the non-verbal communications important topic, that is paralanguage. पैरालैंग्वेज पे एक आध क्वेश्चन बनता है तो हम पैरालैंग्वेज की बात करेंगे इस वीडियो में. द स्टडी ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विच इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री मेन एरियाज, that is paralanguage and as well as proxems and the काइनीस, जिसे हम बोलते हैं काइनिज़म. ओके, सो इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वी ऑलरेडी टॉक अबाउट द ग्रेप वाइन, ओके, बॉडी लैंग्वेज एक्सेट्रा. सो काइनीस, पैरालैंग्वेज, proxems, what are these terms? Okay, so paralanguage, it is describe a vocal qualities such as pitch, volume, inflection, rate of speed and rhythm. How we speak, the way we speak, that we say, है ना, कहाँ पे हम स्टॉप हो रहे हैं, हमारी पिच कहाँ पे हाई हो रही है, लो हो रही है, हमारे बोलने का स्पीड क्या है. सो इट डिस्क्राइब द वोकल क्वालिटीज ऑफ अ स्पीकिंग. Okay, which is known as a paralanguage. What is the kinese? So kineses are the study of how we use body movements and the facial expressions. Okay, body language and facial expressions while speaking. है ना, जब हम बोलते तो रोबोट की तरह तो नहीं बोलते. We have some certain expressions on our face, our eyes, blushing, cheerful, or suppose that you are unhappy. So such kind of the expressions in body language which is known as kinese. Then, and there is a study of paralanguage focus on the way we say what we say. Two identical verbal messages may communicate different meaning altogether. So here the way of speaking sentences, words and giving them meaning, it is very important. So there are different components of paralanguage. तो पैरालैंग्वेज के डिफरेंट जो है कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि वॉइस क्वालिटी, वॉइस क्वालिफायर्स, वॉइस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वोकल सेग्रीगेशन. सो व्हाट इज़ वॉइस क्वालिटी? कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग वॉल्यूम, पिच, रिदम, रेट ऑफ स्पीच, pronunciation and enunciation. Let's look at the volume of the role that play in communication. ओके, इट्स एक्ट एज ए इसेंशियल पैरामीटर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. हम जज करते हैं ना बोलने की स्पीड से, कॉलिंग, किसी किसी की आवाज़ देखो कितनी भारी होती है ना. समटाइम पीपल स्पीक लाउडर टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस. नहीं सुन रहे ऑडियंस तो पर्पजफुली आवाज़ चढ़ा के स्पीक लाउडरली टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस. मतलब ऑन द स्पॉट क्या हो जाती है, वो लाउडनेस बढ़ जाती है. स्पीकिंग लाउडली, ओवर लाउडली कैन बी डिस्टर्बिंग or anyone. Annoying speaking rally, that is speaking really softly, will act as a barrier to effective communication. So the volume of your voice has to be attuned to the situation. है ना, जब हम गुस्से में होते तो ज़ोर ज़ोर से बातें करते हैं. If you are talking with someone loved one, that you are speaking softly. When a mama is speaking with the babies, very that is a tuned way. So voice speech are different on a different occasion. This one is a response to our emotion, that shrinking indicate the excitement or nervousness and anger. तो हमारे टोन बढ़ जाता है, वो अलग होता है. रिदम, इट इज़ अबाउट द पैटर्न एंड म्यूजिक ऑफ आवर वॉइस. अ स्मूथ रिदम विल बी प्रोजेक्ट यू एज एन कॉन्फिडेंट स्पीकर, okay, while speaking in front of the people. And rate of speech, people speak about 150 words a minute on average. Speaking fast signifying that is nervousness. impatient speaker, है ना, समझो हम किसी मॉब के सामने बोल रहे, बहुत हड़बड़ी में, नर्वसनेस में, इम्पेशंस में बोलने लगते हैं. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ ए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और मे द पीपल गेट बोर वाइल लिसनिंग यू. एंड द प्रोनाउंसिएशन शुड बी अ गुड. Pronunciation plays a crucial role in building. If you mispronounce the word, then may the audience get a wrong meaning. Okay, so the pronunciation is about making correct sound, paying attention to the word stress and pitch. So these are the uh, things come in paralanguage. In paralanguage there is a haptics also. स्टडी ऑफ टच, है ना. बेबी को मामा का टच पता चलता है ना. बेबी को जब सपोज कोई बेबी रो रहा है और मम्मी उसे ले लेती है, हक कर लेती है, सो ही नो रिकग्नाइज द टच ऑफ मम्मी विच इज़ नोन एज अ हैप्टिक्स.
वो भी हैप्टिक्स भी जो है वो पैरा लैंग्वेज में आता है, काइनिस पैरा लैंग्वेज में आता है, क्रोनोमिक्स भी आते हैं। क्रोनोमिक्स इट मीन्स हाउ पीपल यूज़ द टाइमिंग, पॉज कितना ले रहे, कब रुक रहे, कैसे टोन अराउज हो रहा है, कब लो हो रहा है, ये जो बातें हैं सब ये पैरा लैंग्वेज में आती है। एंड पैरा लैंग्वेज इट इज़ अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, दैट द स्टडी ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो तीन या ज़्यादा उसमें डिवाइडेड है। पैरा लैंग्वेज है, काइनिज्म है, प्रॉक्सिम्स है, जैसे मैंने बोला हैप्टिक्स है, देन क्रोनोमिक्स है। सो दीज आर दी कम्स अंडर द पैरा लैंग्वेज।